أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور. پریویس ہماری جو ویڈیو آئی ہے وہ پارٹ 1 ہے اور اس میں ہم نے جو سول سروس ریفارمز ریسنٹلی ہوئے ہیں پاکستان میں انڈر سول سروینٹ ایکٹ 1973 پروموشن اور ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ فرام سروس رولز جو آئے ہیں اس کے ممکن اثرات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی. اور اب یہ جو ہے یہ ویڈیو دوسرا حصہ ہے سول سروس ریفارمز کا، اور اس میں ہم ایک ہی ٹاپک جو ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ فرام سروس رولز 1973 ہیں اسی پر ہی گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں یہ معلوم کریں گے کہ یہ رولز کیا ہیں. تو ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ فرام سروس رولز they are made under section 13 of the Civil Servant Act 1973 or this act governs the terms and conditions of all the civil servants in Pakistan. یہ پکچر جو نظر آ رہی ہے اس میں 29 ستمبر کو اسمبلی نے اس کو منظور کیا تھا. یہ بتا رہی ہے کہ جتنے بھی اسی وقت سے یہ اپلائی ہوا تھا تمام سول سرونٹس کو اور اسی ڈیٹ سے اپلیکیبل ہے. یہ جو ڈائریکٹ جس شکل میں یہ موجود ہے یہ اس کی پک ہے. اب مزید جو یہ ریٹائرمنٹ کے رولز ہیں ان کے بارے میں اگر یہ ہم معلوم کر لیں کہ رولز تو بن چکے ہیں اور جاری ہو چکے ہیں ایس آر او کے تھرو، لیکن اس کے ضد میں کون کون سے ملازمین آئیں گے. وفاقی حکومت کے تو بہت سارے ملازمین ہیں، اسی طرح صوبائی حکومتوں کے ملازمین ہیں جن کو عموماً سرکاری ملازمین کہا جاتا ہے. تو سول سرونٹس ایکٹ 1973 کے سیکشن 13 کے تحت جو رولز بنے ہیں کیا وہ ڈائریکٹلی ان تمام جتنے بھی پاکستان میں سرکاری ملازمین ہیں سب کے اوپر لاگو ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. These rules are made under the Civil Servant Act 1973 and legally these are applicable only to the civil servants as defined in this act. تمام امپلائیز کو نہیں ہے. Legally these rules are not applicable directly to the federal government employees other than the civil servants. Also not applicable to the employees of the provincial government. وہ بھی تو سرکاری ملازمین ہیں. Unless the provinces adopt these rules in the prescribed manner. اور اگر صوبے اس کو اپناتے ہیں تو یہ وہاں لاگو ہو جائیں گے. یہ جو جتنی بھی اٹانومس باڈیز ہیں اور کارپوریشنز ہیں جو عرف عام میں جن کو سول سرونٹس جن کے ملازمین نہیں کہلاتے ہیں، سرکاری ملازمین تو کہلاتے ہیں، تو ان پر بھی یہ ڈائریکٹ لاگو نہیں کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایسے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے گورننگ باڈیز ہوتی ہیں جو وہاں کے امپلائیز کے ٹرمز کنڈیشنز کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیٹرمن کرتے رہتے ہیں. تو وہ جتنی بھی ان کی گورننگ باڈیز ہیں وہ ان کو اڈاپٹ کر کے ان ملازمین پر لاگو کر سکتے ہیں جس کا طریقہ کار یہ ہوگا. اب یہ کہا جائے کہ جن امپلائیز کو یہ لاگو کیے جائیں گے جن پہ، تو کب اور کیوں، کن حالات میں ان پہ یہ رولز
किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में कुछ शराइत रखी गई इन रूल्स में कि उन रूल्स के तहत, उन शराइत के तहत ही ये लागू होंगे। और वो ये हो कि सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन 13 के तहत 20 साल की मुलाजमत पूरी करने पे किसी मुलाजिम को, सिविल सर्वेंट को रिटायर किया जा सकता है, लेकिन इसमें उनको वजह बतानी पड़ती है कि किस वजह से, वरना तो वो 60 साल पे जाके रिटायर होगा। तो इसमें चूंकि इसी में तरमीम की गई है, उनकी वजाहत की गई है कि किन हालात में किसी को रिटायर किया जाएगा डायरेक्टली 60 साल से पहले। तो 60 साल की उम्र पूरे होने पर सिविल सर्वेंट तो मुलाजमत से खुद ब खुद रिटायर हो जाएगा, लेकिन इसके तहत रिटायर करने के लिए शोकाज नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। और मुर्खा 15 अप्रैल के SRO के रूप से नए रूल्स जो जारी हुए हैं वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है, लेकिन उसमें भी तरीकेकार कुछ इसी तरीके से अपनाया गया है। ये SRO है जिसके तहत पहला पेज है इसका, जी रूल्स इसके तहत जारी किए गए हैं। इसके डिफिनेशन में एक्ट जहां जहां आया है वो सिविल सर्विस एक्ट 1973 को एक्ट कहा गया है। कंपिटेंट अथॉरिटी जो किसी सिविल सर्वेंट की मुलाजमत से रिटायर कर सकती है वो वही अथॉरिटी है जो सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 6 के तहत उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और जो एक नई डिफिनीशन कंडक्ट अनबिकमिंग जिसको कहा गया है, वो सिविल सर्वेंट का ऐसे कंडक्ट है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जो उसकी स्टैंडिंग एज अ सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विस की स्टैंडिंग को एडवर्स इफेक्ट करे, हार्म करे, और वो जो कवानीन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस सिविल सर्वेंट्स के लिए जारी किए गए हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी हो, तो ऐसे को कंडक्ट अनबिकमिंग डिफाइन किया गया है यहाँ। तो ये एक बहुत अहम है और रिटायरमेंट के जो रूल्स हैं उसमें एक बड़ा किरदार है। और डायरेक्ट रिटायरमेंट उसको इन रूल्स में उसको कहा गया है कि जो सब सेक्शन 1 और सेक्शन 13 इस एक्ट के तहत जो रिटायरमेंट होगी उसको डायरेक्ट रिटायरमेंट कहेंगे। और इसके लिए डिफिनीशन नेक्स्ट रिटायरमेंट बोर्ड की आई है। तो रिटायरमेंट बोर्ड वो आला अफसरान का बोर्ड होगा जो बहुत हाई लेवल के सबसे हाईएस्ट अफसरान जो हैं 20, 21 और 22 ग्रेड्स के जो बेसिक पे स्केल में होंगे, तो उनके रिटायरमेंट के लिए जो बोर्ड बनाया जाएगा उसको रिटायरमेंट बोर्ड कहेंगे। और रिटायरमेंट कमेटीज जो हैं वो BPS 19 और बिलो के लिए रिटायरमेंट कमेटी होगी जो 19, 18 और 17 के लिए होगी। और एक और कमेटी जो है वो 16 और इससे नीचे BPS स्केल के जितने भी मुलाजिमीन हैं उनके लिए एक अलग कमेटी होगी। ये जनाब स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं ये बोर्ड की एक कंपोजिशन है इसके, जो BPS 20 और अबव के लिए बनाया गया। इसका चेयरमैन जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, और कंसर्न जो डिवीजन है उसका सेक्रेटरी इसके मेंबर होंगे।
और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का एडिशनल सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने बड़े ये सिविल सर्वेंट्स हैं उसी के मुताबिक उनके लिए बहुत हाईएस्ट पावर बोर्ड भी बनाया गया है। और इस तरीके से जो दूसरा 19 तक के लिए है उसमें इसी मुख्तलिफ इदारों के अफसरान हैं जो ग्रेड 20 के होंगे, उससे कम के नहीं हैं। और हाँ, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिवीजन का जो होगा वो उसका सेक्रेटरी होगा और इसका सेक्रेटरी या सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो उस डिवीजन का वो उसका चेयर पर्सन होगा, मीन 21 या 22 ग्रेड का अफसर। और एक और कमेटी, दूसरी कमेटी जो बनेगी वो ग्रेड 16 से लेके नीचे के तमाम मुलाजिमीन के लिए होगी। इसका सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न जो हैगा वो इसका चेयरपर्सन होगा और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन कंसर्न उसका सेक्रेटरी होगा और बाकी मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, लैंड जस्टिस डिवीजन से और कंसर्न डिवीजन जो है उनसे भी एक एक मेंबर होगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो मेंबर होंगे। तो ये उनकी कंपोजिशन है।